Hi everybody, welcome back to the channel. Today we are going to be cover OOP in Dart. We already cover list, data types and variables in Dart. After that we cover functions, data types, list and maps. We covered that, and after that we cover functions. Now it's time to cover OOP in Dart. So without any further delay, let's get started. What is OOP? What's the definition of OOP? OOP is a object oriented programming, is a way to write code using class and object to make it more clean, reusable and easy to manage. So let's see what is class. Class एक blueprint होती है, एक template होता है, and we are going to be use it's like a block, and we are going to be use it again and again in our code as much as we need block. Okay, so this is how we write it. The first is comes class, after that string, and after that int speed. That's all. Okay, so class here is name. Sorry, is class is we're going to write car here is name, and in the curly brackets we are going to be write the code we need. सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है. तो we can create any type any kind of function we need in a class. Okay, now let's see what an object is created from a class. Void main car, my car is equal to car. So this is called here, this is here is an object. It created from a class. एक क्लास के साथ हम एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं. अगर हमने एक क्लास जिस तरह की हमने यहाँ पे जो है एक क्लास बनाई थी कार की, उसका हम ऑब्जेक्ट अपने मेन फोल्डर में बना सकते हैं बाय यूजिंग इट्स नेम कार. सो हमने पहले सबसे पहले कार ली, उसके बाद उसमें मैंने वाई कार दिया और उसके बाद उसको कार के इक्वल हो. सो दिस इज जस्ट सिंपली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास. फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट माई कार डॉट ब्रांड, जैसे कि ये इस कोड के अंदर लिखा हुआ था ब्रांड टोयोटा, सो आई यूज़ दैट. और यहाँ पे जिस तरह माई कार डॉट ड्राइव, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था कार इज़ मूविंग, तो ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा कार इज़ मूविंग. सो वी कैन यूज़ दैट कोड in our program by creating this object in our main function. Now let's see what is a constructor. What is a constructor, right? A constructor is a set value when object is created. एक set value होती है जब हम object को create कर रहे होते हैं. car this dot brand and this dot speed, these two are here are constructor. यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर्स बनाती है. नाउ दे आर कंस्ट्रक्टर. ओके, तो अब मैं जब मेन फंक्शन में इनको कॉल करूँगा तो वो कैन गिव द वैल्यू टू दैम. सबसे पहले कार प्लस वन इज इक्वल टू कार, फिर उसके बाद मैंने होंडा वैल्यू दिया एंड देन 120 स्पीड्स. सो देन मैंने उसको सिंपली प्रिंट करवा दिया. आई कैन ऐड मोर कंस्ट्रक्टर हियर whatever we need, car 2 and car, and write it here the values of the code we need to write. Okay, so this is how we write a constructor. What is a name constructor? It change form like this. So this here is a simple constructor. When we are going to write car dot slow, this brand speed is equal to 0, right? This here is becomes a name constructor, car dot slow. Okay, so we create a kind of a function type of constructor that is called a name constructor. We are going to use its name and then write it, because this here doesn't have the values by name. This have given values by index. If we use speed at first and band at seconds, we're going to use that in that way. But this here given the value by name. Okay, after इसमें हमने print करवा दिया. Now what is inheritance? Inheritance means one class use another class. Let's see, I write a class of animal and I write a function of void eat, and after that I write a class of dog. Extend जो है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ animal वाली class को. This is called inherited. I extend a already created class in another class that is called inherited. जब मैंने उसे void part के नाम से function बनाया, then मैं उसे simply print करवा दिया. Now I can only call the dog class and promote these two functions here. So I can promote these two functions here by using just dog class. Okay, so now let's see a method of overriding. What is a method of override?
इन दिस सिंपली यूज दिस here is override. सबसे पहले मैंने क्लास बनाई है एनिमल के नाम से एंड देन मैंने फिर उसको जो यहाँ पे साउंड लिखा था मैंने एनिमल साउंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रिंट करवाना था। अब वही फंक्शन मैंने इसमें लिखा है मगर उसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ बार्क, क्योंकि मैंने इसकी दो क्लास बनाई है और उस वाले जो है फंक्शन को ओवरराइड करवा दिया है उसके, जैसे कि हमने एक चीज़ लिखी है फिर उसके ऊपर दूसरी चीज़ लिख दी है। दिस इज कॉल्ड ओवरराइड, मेथड ऑफ ओवरराइडिंग क्लास. So this is all the theoretical for today lecture. Now let's practice this code by creating a simple app. So now let's practice. सबसे पहले मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्मॉल पैकेट्स। और सबसे पहले हमने एक मेन फंक्शन लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और क्लासेस बनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा यूज़र एंड इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स लिखूँगा। सबसे पहले एक स्ट्रिंग नेम के नाम से आई एम गोइंग टू जस्ट सिंपली क्रिएट अ यूज़र बोट। इसके अंदर मैं दो यूज़र बोट होंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं बनाऊँगा मैं। यूज़र दो मैंने वो बनाया और अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, दिस डॉट name and this dot age. So this is how you simply create a class, a simple class. So उसके बाद अब क्या है कि अब ये एक क्लास है सिंपल सी, उसके बाद इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे अब मैं एक एडमिन के नाम से एक क्लास बना देता हूँ। नाउ लेट्स एक्सटेंड करते हैं यूजर वाली क्लास को। दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट ऑल द सेम बट जस्ट हैव टू बी एक्सटेंड द क्लास। आई एम गोइंग टू यूज द क्लास जो मैंने ऊपर बनाई है उसी को मैं नीचे बनाऊंगा और उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपल है। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट नेम एंड अब इसको यहाँ पे मैं इससे भी सुपर नेम, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको जब ऐप्स बनाएंगे तब एक्सप्लेन करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट अ सिंपल ऐप, so I'm not going to explain these kind of things in details, but here is I can create a compare constructor. After that I create a string and role और उसको मैंने फिर रिटर्न कर दिया वैल्यू का सिंपल फंक्शन मैंने बनाया है। एक और स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाया है। सबसे पहले मैंने एक कॉमन कंस्ट्रक्टर बनाया था यूज़र के अंदर, फिर उसे मैंने नेम कंस्ट्रक्टर बनाया है दूसरी क्लास के अंदर, इसको मैंने एडमिन का नाम दिया था। अब मैं एक क्लास माई ऐप एंड एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट कर रहा हूँ। Now the widgets are the things we are going to create in our apps a lot. So यहाँ पे अब इससे आप इग्नोर करते हैं, just follow the procedure. जब मैं apps बनाऊंगा तब मैं widgets कवर करूँगा, सब कुछ कवर करूँगा। I'm just going to be create a simple app by using class. The reason for creating an app code like this writing is just because I'm going to use the app in real time. You should have be follow the practice, know where we are going to be use class. ऐसे मैंने इसे यूज़र टू कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसे ऑर्थर कर दिया सिंपल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से कंस्ट्रक्टर्स बनाए, सॉरी वेरिएबल्स बनाए और मैंने उन्हें पास करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ओवरराइड, ये एक मेन क्लास बनाई है मैंने इसमें ऐप के नाम से और फिर मैंने उसे एक्सटेंड किया एक स्टेटलेस विजेट, इसमें मैंने एक विजेट भी बनाया है। The widgets are the things I'm going to explain in our next lectures, so you don't have to worry about that. Simple home page बना रहा हूँ मैं यहाँ पे और इसे scaffold के नाम से एक widget बना रहा हूँ। Scaffold, home, app bar, all of these are widgets. Simple. इसमें टाइटल दूंगा यहाँ पे, let's just say title is first app, contacts and text and सिंपल इसे फर्स्ट ऐप के नाम से मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। सिंपल। नाउ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे कॉलम मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड एक्सेस अलाइनमेंट डॉट टॉप कर देता हूँ। स्टार्ट में कर देता हूँ ताकि जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो प्रॉपर बॉटम में आते। नाउ यूज़र कार्ड भी बनाना मैंने नहीं बनाए। अब एक और क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक यूज़र का कार्ड बनाऊंगा जो यूआई के तौर पे हम प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। आई एम गोइंग टू यूज दिस क्लासेज वी क्रिएट अबव एंड यूज दिस इन दिस क्लास। एक्सटेंड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटलेस विजिट कर रहा हूँ। ओके, जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं बनाऊंगा फाइनल
user and user here and constant user एक सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया उसके बाद यूजर कार्ड एंड कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे सुपर डॉट की एंड रिक्वायर्ड करूँगा रिक्वायर्ड एज आई विल टोल्ड यू जब मैंने फंक्शंस क्रिएट किए थे तब मैंने ये वाले पैरामीटर्स आपको बताए थे सिंपली यहाँ पे वो रह गया था वो भी क्रिएट डाल देता हूँ और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ओवरराइड लिख रहा हूँ ओके ओवरराइड कर रहा हूँ बिल्ड कर रहे हैं विजेट हम सिंपल सा यहाँ पे सिंपली कार्ड के नाम से रिटर्न कर रहा हूँ कार्ड बनाना चाह रहा हूँ मैंने तो सिंपल से जिसमें यूज़र 1 और यूज़र 2 के नेम्स आएंगे प्रेस दैट सो एज इंसेक्ट ऑल एंड अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं सिंपल यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट हम डाल सकते हैं और नाउ here this child this style and leading constant enable यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एच इज रॉन्ग यहाँ पे आइकन लाना है आइकन मैं पर्सन वाला ले आता हूँ आइकन डॉट पर्सन सिंपल एक पर्सन वाला आइकन डाला है मैंने उसके बाद मैं एक सिंपल सा क्रिएट टेबल एक कार्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर यूजर 1 और यूजर 2 की वैल्यू शो होगी सिंपल एज दैट यूजर नेम एंड सब टाइटल जो है मैं उसका लिख देता हूँ एज whatever the age of the person we need to be represent right simply और इससे भी अगर आप देखें तो मैं इसी तरह ही कॉल कर रहा हूँ जिस तरह हम अपने फंक्शंस के अंदर कॉल करते थे ओके नाउ अब इसे सिंपली हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पे भी ये रह गई थी अब यहाँ पे मैं यूज़र कार्ड यूज़र 1 और यूज़र 2 कर सकता हूँ सिंपली यूज़र एंड यूज़र 1 ओके सॉरी यूज़र just have to be user 1 and now इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे एडमिन मैंने सॉरी एडमिन नहीं आएगा यहाँ पे यूजर 2 ही आएगा गुड नाउ दिस इज ऑल द कोड फॉर आवर फंक्शन यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे कार्ड क्रिएट किया उससे फिर हमने मेन अपने क्लास ऐप में क्रिएट करवा दिया फिर ऊपर हमने 2 क्लास क्रिएट किए और फिर उसे हमने सिंपल एज दैट नाउ वी शुड रन दिस प्रोग्राम नाउ अब इसे मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं जो पॉइंट मेन फंक्शन है उधर लिख लें इसे उधर लिख लिया अब उसके बाद इसे यहाँ से रन करवा देते हैं नाउ जस्ट वेट फॉर few seconds and it's working that's all so this is how we create a simple card app if you have any problem you can ask in the comment please like share and subscribe and see you in the next video